Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Respected guests, teachers, and my dear friends, I cordially welcome you all to this evening of music, dance, drama, and recitals glorifying Lord Sri Krishna on this divine appearance day. How special this evening is, dear audience, you will yourself discover as the colors of our bash unfold. We are honored to have as our chief guest Mr. Narendra Mohan Bhatia. He is a graduate from IIM Ahmedabad and he is a renowned artist. He has worked in various organizations like Central Board of Secondary Education and the Boxing Association of Gurgaon. And accompanying him is Mr. Biplav Raj. He is a renowned artist and has a diploma from Ravindra Bharati School. So we are thankful to both of them as they have taken time out of their busy schedule to spend a night with us. As you may all know, in all the ISKCON temples, in the morning, all the devotees start their day by offering the prayers of invocation, Vande Guru Sri Charana Ravindra. So, keeping the same spirit, I would like to invite on stage His Grace Radhakant Prabhuji and our guests of honor, Mr. N.M. Bhatia and Mr. Biplav Raj to light up the lamp and offer garland to the founder Acharya of ISKCON and BGIS, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Thank you, Prabhuji, and thank you, our requested guests. Actually, when we talk about Srila Prabhupada and Gurukula, it reminds me of a pastime from our Prabhupada Lilamrita. When Prabhupada was a newborn baby, his father called for an astrologer, and the astrologer told that one day this boy will make a house in which the whole world can live. And you can see this building, Gurukula. It has boys from all over India, so at least it is the house in which whole India lives. Now it's time to start our program, so I invite His Grace Durjay Krishna Prabhuji and his group to please come to stage to offer the prayers of benediction Sri Krishna Kripa Kataksh. हरी बोल खड़ा मत तो जहाँ यहाँ से Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Kanhaiya ki jai. Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nityanamine
performance of the boys. Hari Bol! 1-2 मिनट चुप छोटी छोटी गैया छोटे छोटे छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल विज्ञान यार क्या कर रहा है तू विज्ञान नीचे हटा मत जा कैमरे के सामने आप बना रहे हो मैं भी आ रहा हूँ ऊपर करो कैमरा ऊपर करो आ जाएंगे प्रभु जी आ जाएंगे ऊपर करो ना प्रभु के पैर में वो झुक नहीं सकते अरे यार हो गया खराब है People cannot see I it. convey my sincere regards to Bhakti Vedanta Swami Prabhupada ji, who has conveyed the message of Hare Rama, Hare Krishna throughout the world. I am happy to know that Lord Krishna, I feel the highest spiritual good on the earth. Students, which clearly shows that they not only study but they are having all-round knowledge. Hari bol. And I pray to Lord Krishna Out. Hospital for their bright future, safe future, and I also pray that they will certainly reign to the nation sometime, someday for a betterment. Thank you.
मंदिर में 120 के हैं। आज 60 लोग महाराज की कथा लाइव देख रहे थे। हमारे 100 व्यूअर्स हैं। अभी मैंने ऐसे नहीं, ऐसे मना लिया है, हंसी में होने थे। अरे फोटो खींच रहे थे। Praise Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. I take immense pleasure to invite all our esteemed guests who are present this evening to celebrate with us the birth of the unborn, the appearance, divine appearance day of Shri Krishna. Shri Krishna Janmashtami Mahamotsav ki. So in particular, as you must have seen in the beginning, the director of Bengal School of Arts, he was the one who inaugurated the function along with the Commissioner of Palwal. Once again, we welcome both of them. We welcome Mr. Biplab Roy, who is the principal of Bengal School of Arts. Hari Bol. And we have a team of other students and teachers from Bengal School of Arts. And then we have, from the temple side, we have Haigriv Prabhu. We also have within us Pancha Pandav Prabhu. Boys, please chant one big Hari Bol for him. Hari Bol! He was the general manager of this Gurukul for more than 10 years in the 90s. So very thankful to have him here. And we have many parents of our students. So we heartily welcome all of you. So I can see many of you. I can't take everyone's name, but Mr. Katti from Pune and many others who are there with us. Thank you very much for coming here. And of course to all our teachers who are here. And our alumni, many of our pass out students from Gurukul, they have come today. So we very heartily welcome you all also. A big Hari Bol for Gurukulis. Hari Bol! So we have a wonderful program. We have a list of wonderful program for you today evening. Right now we'll have the drama by the smaller boys, and then we have the drama by the elders, which is about Muchukunda Maharaj, Deliverance of Muchukunda. It's a wonderful drama. You'll enjoy it very much. And then we have the surprise at 11, which is the most fascinating part of the whole show. And we'll have Abhishekam of the Lord. So we have a wonderful list of programs for you. So stay with us and enjoy the wonderful program of Janmashtami. I'll just speak a few words about the importance of this function. As Haigriv Prabhu already told, that why did Krishna appear? Boys, please pay attention for 2 minutes. Why did Krishna appear here? Yes? To give pleasure to devotees? Okay, to kill demons? These are all good reasons, but this is not the main reason for Krishna's appearance. Krishna could have killed demons just by his mere wish. You know, just by desire. The material nature could have finished all the demons. So what is the main reason for Krishna's appearance? Yes? Yes, but still, most important. Yeah, very good. Chaitanya Katti is giving the right answer. To display his wonderful pastimes. That is the main reason. There's a beautiful shloka in Srimad Bhagavatam. Anugrahaya bhaktanam manusham dehamastita bhajate tadrishi krida yah sutva tatparo bhavet. It says, Anugrahaya bhaktanam. To bestow his special mercy on the devotees, Lord Krishna appears here. Why? In what form does he bestow his mercy? By performing his beautiful pastimes, which we'll see today. His stealing of butter, lifting of Govardhan hill, playing with his cowherd friends. So by enacting these wonderful pastimes, what is Krishna doing? He is attracting all of us. And when we hear these wonderful pastimes of Krishna, we also want to go back to Krishna. So that is the main purpose. Krishna is coming here to attract all of us to him, to go back to his abode. So that we can also go, Srila Prabhupada used to often say, that we can also go and play with Krishna. We can also go and dance with Krishna. How many of you want to play with Krishna? Raise your hands. How many of you want to dance with Krishna? So we all can do that by the mercy of Srila Prabhupada. If we take up this process of Krishna consciousness, we absorb ourselves in the holy names, pastimes, forms of Krishna, then we will also eventually one day participate in Krishna's pastimes. So with these final prayers to Lord Krishna to bless all of us so that we can also go back to his abode. I'd like to end here. Thank you very much. Srila Prabhupada ki Jai.
ज़्यादा नहीं घुमाने का भाई। चलो अनुज स्टील का थोड़ा zoom out करो। माइक दो, माइक में माइक मार zoom out करो। कान्हा तेरो कारण आयो हम सब श्री वृंदावन धाम। सुने थे भगवती जनों से एक पलक जो रहे तेरो धाम। जन्म जन्म को पाप कट जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर ब्रजनाथ श्री कृष्ण के चरण में मेरो है एक अर्ज। बचावे मुझे माया के घोर नागपाश से और नवाबे मोहे कृष्ण प्रेम से। मैं चाहूँ केवल तेरो नाम और चाहूँ वास तेरो धाम। ब्रजराज गोपाल हर दियो श्री वृंदावन। हरि रस से आओ पीवे सो रस मन भर के। छोड़ते यह रस कहाँ जावे कान्हा ना छोड़े पल्लू हमारे। हरा
Shani Krachari Utujiva Bodgo Hari Hari Mukundamini Gari Rama Krishna Hari Kriva Jai Kirani Madhavan Kunjabi Hari Gopi Jana Malama Giri Bandani Keshavanandan Raja Jana Rajana Jamuna Tiravana Chari And so it's going up to Srila Prabhupada To Guru Maharaj To all the preachers on the Paniva I need some sex songs, I wanna see you hands up In the land of Raja I wanna go to Raja and chant the holy name Thank you Gopal, thank you Nitai For saving my soul I wanna go to Raja Raja, 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 I wanna go to Raja Raja, I wanna go to Raja Have you been to Raja? Just tell me about the beauty out there. I really need to be there. Somebody tell me how to get there. I wanna see the wonders. I wanna feel the dust of Raja. The swans and the peacocks and parrots and reindeers. That's the land of Gopal. I wanna go to Raja and chant their holy name. Thank you, Gopal. I wanna go to Raja and sing the holy names. Thank you, Nita. I wanna go to Raja and chant the holy name. Thank you, Radha. Thank you, Krishna, for saving my soul. I wanna go to Raja. Raja, Raja, I wanna go to Raja. Raja, I wanna go to Raja. गांव पर बहुत बड़ी भारी सेना के आक्रमण कर दिया। तब देवता अपने प्राणों की रक्षा करते हुए इधर उधर सहायता के लिए भाग उनमें पृथ्वी पर इक्ष्वाकु वंश में महाराजा मानधाता के पुत्र मुचकुंद की सहायता से देवताओं ने पुनः स्वर्ग पर अपना आधिपत्य एक लंबे समय तक राजा मुचकुंद ने देवताओं के बाद देवताओं को सेनापति के रूप में स्वामी कार्तिकेय मिले। तब देवताओं ने राजा मुचकुंद से कहा
लिए स्वर्गलोक का अपना घंटे राज्य त्याग दिया तथा अभिलाषाओं के लिए त्याग कर दी। अब आपके पुत्र, रानियां, बंधु बांधव तथा हमारे मंत्रियों में से कोई न रहा है और आपकी प्रजा भी काल के गाल में चली गई। हम आपको केवल मोक्ष के अतिरिक्त सब कुछ दे सकते हैं राजन। मांगिए, मांगिए राजन, मांगिए। हे परम आदरणीय देवताओं, मैं युद्ध में अति श्रम के कारण बहुत ही थक चुका हूँ। महीनों सालों तक असुरों से युद्ध करते हुए मुझे बहुत ही थकान हो चुकी है। अतः हे देव, मैं वरदान स्वरूप अभी निद्रा ही मांगूंगा। अतः हे देव, यदि आप मुझे कुछ भी देना चाहते हैं तो निद्रा का ही वरदान दें। हे परम यशस्वी राजा मुचकुंद, हम आपको वरदान देते हैं कि जो कोई भी आपकी निद्रा में व्यवधान डालेगा वे आपकी दृष्टि पड़ते ही जलकर भस्म हो जाएगा। तो रेवत हूँ और ये मेरी पुत्री रेवती है। प्रणाम करो पुत्री, प्रणाम। प्रणाम पितामह। आयुष्मान भव। कहो पुत्र, कैसे आना हुआ? मैं इसके विवाह को लेकर अत्यंत चिंतित हूँ। कृपया करके आप मुझे इसके लिए एक योग्य वर बताएं। इस समय पृथ्वी पर इसके लिए कोई योग्य वर नहीं है। बहुत जल्द जब भगवान श्री और बलराम जी द्वापर युग में अवतार लेंगे तब तुम अपनी पुत्री का विवाह बलराम जी के साथ करा देना। वही इनके लिए सुयोग्य वर है। जी प्रणाम। सावधान, महाराज काल्यावन दरबार में पधार रहे हैं। महाराज, इस समय युद्ध में आपके समक्ष कोई खड़ा होने वाला नहीं है। महाराज, आपकी वीरता और बल के समक्ष कोई नहीं टिक सकता। महाराज कालेवन, इस समय संसार में ऐसा कोई वीर नहीं है
जो आपकी सेना से लोहा ले सके। लगता है इस कालेवन और इसकी मंत्रियों तथा दैत्यों की मति मारी गई है। शायद इसे ये ज्ञात नहीं कि मथुरा नगरी में भगवान श्री कृष्ण विराजमान। नारायण नारायण। या तो ये मूर्ख है या तो ये जानबूझकर मूर्ख बनने की प्रयास कर रहे हैं। जो भी हो, चलकर इसकी कल्याण की व्यवस्था भी हमें किए देते हैं। क्या करें, अपना तो स्वभाव ही ऐसा है, हमसे किसी का दुख नहीं देखा जाता। नारायण नारायण। ओ आइए आइए नारद मुनि, आइए, पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए। नारायण। क्या बात है राजन, बड़े जोर से ठहाके लगाए जा रहे हो। कुछ विशेष प्रसन्नता की बात तो जरा हमें भी बताइए। वैसे तो कोई विशेष प्रसन्नता की बात नहीं नारद मुनि जी, यदि आपने पूछ ही लिया तो खैर आपसे क्या छुपाना। ये मेरे वीर मंत्री मेरी वीरता की प्रशंसा कर रहे थे। नीचे से नहीं। इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है कि आप बहुत पराक्रमी तथा बलशाली योद्धा है। हम ना कहते थे। परंतु राजन, शायद आप एक बात भूल लें कि पृथ्वी में अभी श्री कृष्ण विराजमान है, जिसने कि अब तक कंस सहित कई दैत्यों तथा असुरों को काल के गाल पहुंचा दिया है, और जो कि इस समय मथुरा में राजा उग्रसेन के सलाहकार के रूप में विराजमान है। वो दिखने में बड़े ही दिव्य, बड़े ही सुकुमल और सुंदर, पीले पीतांबर धारण करने वाले, घुंघराले अलकाएं बड़े ही दिव्य दिखाई देते। नारायण। अच्छा, फिर तो हम उसे जरूर देखना चाहेंगे। परंतु राजन, जब तक वो ये पृथ्वी में उपस्थित है, तब तक आपको अपने आप को सर्वश्रेष्ठ योद्धा कहना नारायण नारायण उचित नहीं है महाराज। सेनापति, हमारी सेना को मथुरा पर आक्रमण करने का आदेश दिया जाए। नारायण। हम भी तो देखें वो कौन सा शूरवीर है जिसने कंस जैसे महापराक्रमी योद्धा को खेल ही खेल में मृत्यु को प्राप्त करवा दिया। जाओ, हमारे आदेश का तुरंत पालन हो। जैसी आज्ञा महाराज। महाराज, मुझे तो वो कोई माया भी लगता है। जो कोई भी हो, अब उसका सामना हमसे हुआ है, हमसे, उसे भी देख लेंगे, कोई बात नहीं, आने दो। अगर रोजा है, रोजा। नारायण नारायण। आइए आइए देव ऋषि, पधारिए। लगता है किसी गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है। विषय तो गंभीर ही है। लाइट चालू कर दो भैया। जाने वाला भाई लाइट चालू करवाया। हम जरासंध द्वारा किए जाने वाले आक्रमण पर विचार विमर्श कर रहे हैं, जो कि 17 बार हारने के पश्चात 18वीं बार अपनी बड़ी भारी सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण करने आ रहा। नारायण, उसकी चिंता बाद में करना प्रभु, पहले काल्यवन से युद्ध की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि वो मथुरा के बाहर आ पहुंचा है और कुछ ही देर में मथुरा के अंदर प्रवेश कर लेगा। कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। वो 3 करोड़ मलेक्षों के साथ आ रहा है। अरे देव ऋषि नारद, कभी तो कोई अच्छी खबर लेके आया कीजिए। नारायण नारायण। अब क्या सोचा है तुमने? हाँ, ये सचमुच गंभीर विषय है। ये सचमुच गंभीर विषय है पुत्र कृष्ण, हमें शीघ्र ही कुछ करना चाहिए। ताऊ भैया, महाराज उग्रसेन, सबसे पहले हमें मथुरा वासियों को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना चाहिए, अन्यथा यह निर्दोषी निरपराध व्यर्थ में कष्ट उठाएंगे। एक ओर से काल्यवन भी आने वाला है और एक ओर से जरासंध भी।
विश्वकर्मा, विश्वकर्मा, हमारे मथुरा वासियों के लिए समुद्र के बीच में एक ऐसी नगरी का निर्माण करो जिस पर किसी भी प्रकार का आक्रमण ना हो सके। जो आज्ञा भगवान। दाऊ भैया, सबसे पहले मैं काल्यवन से निपट लेता हूँ, बाद में जरासंध को देखेंगे। जैसी तुम्हारी इच्छा कृष्ण। सचमुच नारद जी ने जैसा वर्णन किया था यह तो उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर और सुकोमल निकला। परंतु ये मेरी सेना के सामने अकेले ही युद्ध करने आया है, इससे इसकी निडरता का पता चलता है। सचमुच ये एक वीर योद्धा के लक्षणों को धारण करता है। महाराज काल्यवन, आपका हमारी मथुरा नगरी की सीमा पर कैसे आना हुआ? हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? इस बड़ी भारी सेना को तो देखकर लगता है आप मथुरा पर आक्रमण करने आए हैं, पर हम दोनों का तो कोई वैर नहीं, फिर यह युद्ध कैसा? युद्ध के लिए वैर होना आवश्यक नहीं कृष्ण। अपने राज्य की सीमा को अपने बाहुबल से बढ़ाना और अपनी प्रजा को प्रसन्न रखना एक राजा का कर्तव्य है। हमने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है कि तुम वो योद्धा हो जिसने कंस जैसे पराक्रमी योद्धा को खेल ही खेल में मृत्यु के घाट उतार दिया। परंतु आज तुम्हारा सामना हमसे हुआ है, हमसे, काल्यवन से, जिसका नाम सुनते ही वीर योद्धा थर थर कांपते हैं और ज्यादा नहीं तो कम से कम 10 बार सोचते हैं कि युद्ध भूमि में आए या ना आए। यदि तुम अकेले ही आए हो तो हम भी अपनी सेना को आदेश देते हैं कि तुम्हारे और हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। अगर महाराज काल्यवन आपकी यही इच्छा है तो हम इसे अभी पूर्ण किए देते हैं। अरे रुक, चलिए, कहाँ भागा जा रहा है? कायर, रुक, ठहर, अभी बताता हूँ तुझे। आइए महाराज काल्यवन, आइए। अरे ठहरेगा तभी तो आऊंगा। कायर, इतने अच्छे कुल में पैदा होने वाला युद्ध भूमि से भागता है, छी। अरे कहाँ दौड़ा चला जा रहा है? रुक, अभी बताता हूँ तुझे, रुक, कहाँ दौड़ा चला जा रहा है? तेरा तो मैं पाताल तक पीछा करूंगा। अरे देखो, गुफा में घुस गया, अब तो इसकी मृत्यु निश्चित है। हा 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 हा। सन्यासी बाबा की तरह सोया पड़ा है, जैसे इसे तो कुछ पता ही नहीं। रुक कायर, तुझे अभी बताता हूँ, रुक।
वह कौन है जिसने मेरी निद्रा में विघ्न पहुंचाने का प्रयत्न किया है? अच्छा तो तू है? कितनी दिव्य छटा, इतना तेज पुंज प्रकाश इस गुफा में क्यों है? यह कहाँ से आ रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है कि फिर से देवतागण को कोई युद्ध होना है या असुरों से कठिनाइयां हैं झेलनी पड़ रही है, इसलिए वो फिर से सहायता लेने आए। आप कौन है देव? आप इन कोमल चरणों से इस घोर जंगल में क्यों भी चल रहे हैं? क्या आप अग्निदेव हैं या सूर्यदेव हैं या चंद्रदेव हैं या ब्रह्मा विष्णु शंकर के उपास्य श्री कृष्ण हैं? श्री कृष्ण, आहा। हे देव, यदि आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो मैं मानधाता का पुत्र मुचुकुंद हूँ। बहुत वर्षों पहले देवासुर संग्राम में मैंने असुरों से देवताओं की रक्षा की थी। वरदान स्वरूप में मैंने उनसे निद्रा का ही वर मांगा। उसके बाद मुझे अभी अभी किसी मूर्ख ने आकर जगाने का प्रयत्न किया। अवश्य ही उसके पापों ने उसे जलाकर भस्म कर डाला होगा। उसके बाद देव मुझे आपके दर्शन हुए। अब आप अपना परिचय दे प्रभु, आप कौन हैं? वैसे तो राजन मेरे हजारों जन्म कर्म नाम हैं जिनकी गिनती मैं स्वयं भी नहीं कर सकता। जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरे जन्म कर्म सभी बहुत दिव्य होते हैं। यह संभव है कि एक व्यक्ति अपने अनेक जीवनों में पृथ्वी के धूल कणों की गिनती कर डाले, पर मेरे जन्म कर्म नामों की गिनती करना असंभव है। फिर भी मैं तुम्हें अपना वर्तमान परिचय देता हूँ। मैं यदुवंशी वसुदेव का पुत्र श्री कृष्ण हूँ। यह काल्यवन ही था जो मेरी ही प्रेरणा से इस गुफा में आया और जलकर भस्म हो गया। यह कंस के समान एक बहुत बड़ा योद्धा था। तुमने पहले मेरी बहुत आराधना की थी, फलस्वरूप मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मुझसे कुछ मांगो वत्स, मुझसे कुछ मांगो। हे देव, आपके दर्शन के बाद आपकी इस दिव्य छटा जिसको देखने के लिए मुनि लोग वर्षों सालों युगों तक साधना करते हैं, वह छटा मुझे आज आपकी कृपा से दिख गई। उसके मैं दर्शन कर पाया। उसके बाद अब मुझे कोई भी इच्छा नहीं है। हे प्रभु, हे मुचकुंद, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए ही मुझसे कुछ वरदान मांगो। मैं तुम्हें कुछ वरदान देना चाहता हूँ। तुमने मेरी बहुत आराधना की है। हे देव, मुझे जो चाहिए था वो तो मुझे मिल गया। आपके दिव्य चरणों में मुझे प्रेम हो गया, वो भी आपकी ही कृपा से। और उसके बाद मुझे आपके इस दिव्य छटा के दर्शन हुए। अब मेरी कोई इच्छा नहीं है देव, अब कोई इच्छा नहीं है। मेरे बार बार कहने पर भी तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, अतः फलस्वरूप मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे और मेरे परम भक्त होगे। Anup from 9th grade, Mihir from 9th grade, and Revati ji is a new boy, Vaibhav from 9th grade, and Brahma ji Siddhant, Krishna Balram. Krishna is Dhruv and Balram was Priyank from 9th grade. Indra and Iman played by Himanshu, Vishal, Shivam Siroi, they all are from 10th grade. Pradeep from 10th grade.
Girdhar Gopal was Muchkund, he is in 9th grade. And Gagan Puri, he is our favorite, Kalyavan. Haribol. And Raghav, he is the follower of Kalyavan from 9th grade. So thank you very much for watching. Oh, Kalya Nag, you have poisoned the holy river Yamuna. Go far away from the Yamuna, otherwise I'll punish you badly. Go! I don't...
हरि बोल। We will have